Okay, everyone pay attention guys. Always remember guys, when the teacher said solve the equation, तो guys equations के कुछ rules है. This is the basics and the first rule of equation. Whenever we solving equation, we don't need brackets, we don't need fraction. If there is bracket or fractions in equation, guys फिर से अच्छी तरीके से सुनो. If there is brackets or fraction in equation, तो guys first of all we will get rid of this two thing. We get rid of this bracket, we get rid of this fraction. So guys आपने याद रखना है, जब भी equations में brackets आ जाती है या equations में fraction आ जाता है, तो first of all get rid of bracket, get rid of fractions. जैसे ही आप brackets से जान छुड़ा लेंगे, when you get rid of fraction, you get an easy equation. आप equation को identify भी कर सकते हो कि ये कौन सी equation है, whether it's linear, जब तक bracket रहेंगे, जब तक fractions रहेंगे, guys equation identify करना problem होता है. So what is the basic rule? This is called mathematical etiquettes. This is called mathematical manners. This is called mathematical rules of solving any type of equation guys. किसी भी किस्म की equation हो, सबसे पहले आपने brackets और fraction खत्म करने. तो in this bracket in this equation we have only brackets. तो guys bracket को remove करने का मतलब है we will open the bracket, and open the bracket का मतलब होता है expand the bracket. Yes guys, ये तो आपको पता ही है कि open the bracket mean expand the bracket. Okay guys, तो first of all we will expand the bracket. तो guys we know that जब हम bracket expand करते हैं, so these are the cases of expansion: before bracket plus, before bracket minus, before bracket number, then bracket multiply bracket and bracket whole square. So guys in these three expansion we only apply rainbow method, but in these two expansion we'll apply rainbow method and shortcut method. So the shortcut method is called identity method. Identity is shortcut of rainbow method. Okay guys, तो हमारे पास देखो first of all we will get rid of bracket from this equation. तो look here, हमें कौन सी expansion दी हुई है? Bracket multiply bracket and number multiply by bracket. तो guys हम पहले check करेंगे, इसमें तो कोई identity नहीं लग रही, but इसमें identity लग सकती है. But this time look here guys, these are the three algebraic identity. This is called square of the sum of two terms. The second identity is called square of the difference of two terms, and guys the third identity is called product of the sum and difference of two terms. तो guys this time there is no identity applying. कोई भी identity यहाँ पे apply नहीं हो रही है. तो guys it's mean we will apply rainbow method. Rainbow method is a longer method. Rainbow method में हम सारे bracket open करके दिखाते हैं. Look here guys. So it's my choice. I will open this bracket or this bracket. दोनों में से कोई भी bracket में open कर सकता हूँ. तो guys I am opening the first bracket. तो look here guys. How can we open it? Look here guys. Yes. So this first term will multiply by next whole bracket. So this 3x multiply with next whole bracket, which is x minus 4. Okay guys. Then this minus 1 also multiply by next bracket. So plus 1 also multiply by x minus 4. Now guys this number multiply bracket, तो this minus 5 multiply first term. Guys मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में मत बोलो प्लीज़. तो guys first term multiply by this minus 5 multiply by both the term inside the bracket. तो मल्टीप्लिकेशन का रूल था first sign minus and plus x, so minus plus minus, then number is 1, तो 5 1s are 5, then come x. Okay, then minus 5 and minus 1, minus minus plus 5 1s are 5. Okay guys, so now this 3x multiply by both the term inside the bracket, this plus 1 यहाँ पे 1 multiply both the term inside the bracket. तो guys look here, first we apply rules. यार अब ये कौन आ गया? शामिर हम्माद अब्बासी. So plus 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 3 1s are 3, x multiply x is x square. तो guys look here, जैसे ही bracket open होते हैं guys, जैसे ही bracket open होते हैं, आपको clearly idea हो जाता है कि bracket open होते के साथ, इसीलिए हम कहते हैं first of all get rid of bracket. So this square clearly indicate us this is a quadratic equation. Then plus minus minus 3 4s are 12 and x. Then plus 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 1 into x is x, plus minus minus 1 4s is 4. Abdullah Sami is in this class guys. Abdullah Sami. Yes sir. Yes sir. Now guys look here. Then minus 5x plus 5. तो guys हमें आइडिया तो हो गया कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपको ये भी याद है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते थे तो ब्रैकेट ओपन होने से हमारे पास आते थे टर्म्स मीन सेपरेटर. तो सेपरेटर रूल चेक टर्म 1 2 3 4, देन गैदर द सेम टर्म. दीज आर टू सेम टर्म. So this 3x square remains same. Minus plus minus, sign of bigger absolute. 12 is bigger. Minus 12 and plus 1x, so it become minus 11x. Minus 4 remains same. Minus 5x remains same. Plus 5 remains same.
सो गाइस वी नो दैट वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, और फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए गाइस हमें ये ऑर्डर होना ज़रूरी है, पॉजिटिव क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट एंड अदर साइड इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एंड जीरो, कि एक वी नीड पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एंड अदर साइड जीरो। अगर तो लुक हियर गाइस इट इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इससे तो शिफ्ट कर ही नहीं सकते। तो गाइस इट्स मीन हम इस साइड को जीरो बनाएंगे, क्योंकि हम इस 3x को शिफ्ट नहीं कर सकते, इट इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव क्वाड्रेटिक। तो गाइस इट्स मीन वी विल शिफ्ट दिस माइनस 5x, वी विल नीड शिफ्ट दिस प्लस 5x। ओके, सो लुक हियर गाइस टू मेक अदर साइड जीरो, पॉजिटिव तो पहले से है, हमें ये साइड जीरो बनानी है, तो माइनस 11x है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शिफ्टिंग दिस, जब यहाँ से शिफ्ट होगा तो शिफ्टिंग में ऑपरेशन चेंज होता है, दिस एडिशन बिकम सब्ट्रैक्शन बिकम एडिशन। अब इसको शिफ्ट करें तो प्लस 5 विल बिकम प्लस। तो गाइस दोनों चीज़ हो गई, पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एंड अदर साइड इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ विल सिंप्लीफाई दिस लीनियर टर्म्स, नाउ विल सिंप्लीफाई दिस कांस्टेंट टर्म। So 3x square remains same, minus plus minus sign of bigger absolute 6x minus minus plus sign of bigger absolute 9 equals to 0 guys. Okay, so now we have positive quadratic, now we have linear constant and other side is equals to 0. तो guys it's mean we can apply factorization. अब हम इस quadratic equation को factorize कर सकते हैं। तो now guys I am factorizing it, look here। अब गौर से देखिए guys, हम इसको factorize करें तो मेरे पास equation है 3x square minus 6x minus 9 equals to 0। तो गाइस फैक्टराइज का मतलब होता है वी विल मेक 3 टर्म्स सिंगल टर्म, हम इन तीनों टर्म को सिंगल टर्म कन्वर्ट करेंगे। फैक्टराइज का मतलब होता है मेक द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल टर्म, मेक द थिंग सिंगल टर्म। तो गाइस सबसे पहला मेथड है ऑल कॉमन। व्हाई वी कॉल इट ऑल कॉमन? बिकॉज ऑल कॉमन मीन, ओहो गाइस वीडियो शायद स्टॉप हो गया। ऑल कॉमन मीन गाइस, ऑल कॉमन का मतलब होता है we will find the common factor in all the term. Yes, there is a common factor, and common factor is guys 3. So this 3 cancel with 3, we have left x square. Then this 3 cancel with 6 minus 2x. Then 3 3s are 9 guys, we have left minus 3 equals to 0. तो guys अगर आपको याद हो मैंने बताया था जब भी हम all common method of factorization करते थे तो all common में जो ब्रैकेट बचता है ये ब्रैकेट कभी कभार फैक्टराइजेबल होता है, और ये फैक्टराइजेबल होता है या अलजेब्रिक आइडेंटिटी से या फिर ब्रेकिंग द लीनियर टर्म से। तो गैस इस बार ये फैक्टराइजेबल है, किससे फैक्टराइज हो रहा है गैस? ये ब्रेकिंग द लीनियर टर्म से। तो गैस रिमेंबर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो और ये ब्रैकेट ऑल कॉमन के बाद ये ब्रैकेट फर्दर फैक्टराइजेबल है तो गैस यू विल फिनिश दिस ऑल कॉमन फैक्टर। इस ऑल कॉमन फैक्टर को आपको ख़त्म करना पड़ जाता है फिर। इफ़ द ब्रैकेट इज फर्दर तो दिस 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वी हैव नाउ लेफ्ट फाइनली द इक्वेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि पास पेपर में इसी तरह का सवाल देता है कि शो डैट इट रिड्यूसेस टू दिस, इस तरह की इक्वेशन देता है कि कहता है कि इक्वेशन फाइनली इस तरह की बन जाएगी। तो ये सवाल ज़रूर आता है, तो गाइज ये चीज़ें याद रखो। नाउ अब ये फर्दर फैक्टराइजेबल है ब्रेकिंग द लीनियर टर्म। तो क्वाड्रेटिक टर्म विल रिमेन सेम, कांस्टेंट टर्म रिमेन सेम। हम इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए पहले हम क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 3x स्क्वायर। अब इसके हम फैक्टर्स लेंगे, तो गाइस फैक्टर सिर्फ इसका एक ही है बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर। नाउ वी फाइंड द फैक्टर। तो गाइस फैक्टर इसका सिर्फ एक ही आ रहा है बिकॉज 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3। तो लुक हियर गाइस हमें -2 बनाना है, तो माइनस मीन हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 + 1 माइनस। तो गाइस मैं ले रहा हूँ 1 और मैं ले रहा हूँ -3, इसके साथ भी x इसके साथ। तो लुक हियर गाइस -2x बन गया, इसी को मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए, जुएर ये बनना चाहिए, ये नहीं बनाते हो, प्लस में ये भी बन गया। इट्स मीन जो हमने पेयर लिए वो 100% एक्यूरेट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं गाइस। सो लुक हियर गाइस मैंने इसको कैसे फैक्टराइज किया, +x एंड -3x, क्योंकि मुझे चाहिए -2x, तो बड़े नंबर के साथ माइनस, समझ में आई बात जुएल? बड़े नंबर के साथ, तो मैंने 2 के 3 के साथ माइनस लिया है। तो दिस quadratic term remain same, this constant term remain same 0। हमने इसको ब्रेक करा है +x -3x। आफ्टर ब्रेकिंग द लीनियर टर्म दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर। तो पहले पेयर में कॉमन आ रहा है x, तो x स्क्वायर डिवाइड बाई x, तो x बच जाएगा प्लस x का 1 बच जाएगा।
आई एम टेकिंग -3 कॉमन, माइनस माइनस प्लस 3 गेट x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 गेट 1 बच जाएगा. तो गाइस वी गेट सेम ब्रैकेट. व्हेन वी गेट सेम ब्रैकेट सो विल पुट दिस x - 3 इनसाइड द ब्रैकेट. तो गाइस x + 1 = 0, x - 3 = 0. सो ये +1 वहाँ जाके -1, ये -3 वहाँ जाके +3. दिस इज डन गाइस. ये वीडियो बन रहा है ना, लेकिन वो मेरी मेमोरी फुल हो गई. क्या मतलब छप्पड़ किया है? तो पहले मैं ये हटाऊँ. कौन सी क्लास, किसकी क्लास चल रही है? छोड़े हैं वो मेमोरी फुल हो गई ना.